Hello friends, how are you? In this lecture of Fundamentals of Organic Chemistry, today we will see relationship between inductive effect and the strength of carboxylic acid. In a previous lecture we have seen about inductive effect, that is electronic effect, that is an example of electronic effect. In inductive effect, there is a permanent polarization of sigma bond because inductive effect operates in sigma bond. ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है. आज के लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी हाउ इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसके लिए मैं एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लूंगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड का. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड, हाउ टू राइट फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड IUPAC नेम ऑफ दिस इज अ मेथेनोइक एसिड. ए फॉर्मिक एसिड, नेम ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ फॉर्मिक एसिड. सेकंड एग्जांपल लूंगा मैं एसिटिक एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड O OH. ये एसिटिक एसिड है. एंड थर्ड वन प्रोपियोनिक एसिड, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O OH. ये प्रोपियोनिक एसिड है. इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वेदर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड. रिमेंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी एसिड. नाउ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, आई विल टेक जनरल एग्जांपल, दैट इज HA. सपोज दिस इज एसिड, ये एसिड है, इसका डिसोसिएशन क्या होगा, H प्लस and A minus. HA, this is acid. ये एसिड है, H प्लस इसे हम प्रोटॉन कहेंगे, और A माइनस इज सेड टू बी कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड. ए कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस. इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेबल होना चाहिए तो ये स्ट्रांग होता है. सपोज सेम एसिड इज टेकन इन वाटर, HA in water, it gives what, here formation of H3O plus and A minus. And here dissociation of HA, dissociation of this acid in water. ये acid है, so A minus इसका conjugate base होगा. Same for this equation you can write K is equal to K. This is acid, that is why I will write here Ka. Remember Ka and dissociation constant for acid. इसका dissociation constant है Ka equal to, now here concentration of H3O plus, concentration of A minus upon concentration of HA. ये एक्सेस होता है, no need to write, don't write here. A equilibrium constant है, this equilibrium constant is said to be what, Ka, यानी dissociation constant for acid, dissociation constant for acid. इसका और एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या है? रिमेंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, acidic strength
is directly proportional to Ka. अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. नाउ सेम रिलेशन वी कैन राइट एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to pKa, like a pH and H plus concentration. And acidic strength directly proportional to Ka and dissociation constant. जैसे भी dissociation constant बढ़ता है, acidic strength of that carboxylic acid or any acid वो बढ़ेगी. Acidic strength is inversely proportional to pKa. And what is pKa? Here we can write pKa is equal to negative logarithm of what? Ka to the base 10. This relation is like a pH. pH is equal to negative logarithm of H plus concentration. So A relation है acidic strength or what? Dissociation constant and pKa. Here we have taken formic acid, acetic acid and propionic acid. pKa value of formic acid, इसका pKa value of formic acid is 3.77. acetic acid का pKa 4.76 and propionic acid का pKa value it is 4.88. and we know that acidic strength is inversely proportional to pKa. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. pKa बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, यानी सबसे वीक प्रोपियोनिक एसिड होगा. isn't it? So order is like this. यानी सबसे कम pKa किसका है? फॉर्मिक एसिड का सबसे कम pKa है, क्योंकि हमने देखा है एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa. pKa बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा. So here less value of pKa in case of formic acid, so formic acid is stronger than acetic acid and then finally propionic acid. अगर आपको pKa values पता नहीं है, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, isn't it? It is not possible to remember all pKa values. Then how to decide? So don't worry about this. अगर आपको pKa values पता नहीं है, so don't worry. Now ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड. ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है. दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. हाउ टू आइडेंटिफाई? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन है इसमें. क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अटैच है. एग्जैक्टली सेम हियर दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. बाकी के हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन कार्बन पे हैं. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन नियरली सेम, बट यहां पे डिफरेंस ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2.8 एंड हाइड्रोजन की 2.1. यानी हियर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो एसिडिक होता है. जब कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होता है, वो हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है. यानी दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. एंड वी नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन. जितने जल्दी इसका सेपरेशन होगा, जितने जल्दी ये एसिडिक हाइड्रोजन का सेपरेशन होगा, उतना वो स्ट्रांग होगा. इट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन. अभी देखा हमने A को पानी में लिया, H2O में लिया, फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस एंड A माइनस. यानी सेपरेशन होना चाहिए. फास्ट सेपरेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्लो सेपरेशन वीक एसिड. सी इन फॉर्मिक एसिड here only hydrogen is attached to carboxylic group. Here it is methyl group.
and we know that alkyl group is electron donor. Alkyl group is electron donor. अगर अल्किल ग्रुप मिथिल होगा, इथिल होगा, प्रोपिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, व्हाट एवर इट मे बी, अगर कोई भी अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम को अटैच होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. अब अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो दिखता नहीं ऑन दिस मिथिल ग्रुप, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनर है. इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे इन हाइपर कॉन्जुगेशन. दैट इज ऑल्सो वन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो बाद में देखेंगे. सो मिथिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी दिस मिथिल ग्रुप विल एक्सर्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑन दिस, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड टू दिस कार्बन बढ़ेगी, जो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग विल टेक्स प्लेस लाइक दिस, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है. ये जो बॉन्ड है थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है. In case of propionic acid, here ethyl group is there, and we know that ethyl group will exert more plus I effect compared to methyl. इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा मिथिल से, यानी here it exerts plus I effect, यानी here it is a more electron density, यानी ये बॉन्ड जो है वो OH बॉन्ड ये काफी स्ट्रांग बनेगा, काफी स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है कंपेयर टू दिस मिथिल ग्रुप, यानी ए बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, यानी जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा H प्लस, यानी दिस इज वीक कंपेयर टू व्हाट एसिटिक एसिड. इन फॉर्मिक एसिड देयर इज नो प्लस आई, यहां पे ओनली हाइड्रोजन, देयर इज नो प्लस आई, यहां पे प्लस आई इफेक्ट नहीं है. और हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. इतना ही ध्यान में रखो, यहां पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है कंपेयर टू एसिडिक एसिड. देयर इज अ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन व्हाट प्रोपियोनिक एसिड, यहां पे ज्यादा है, यानी एज प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा. In a propionic acid is weak compared to acetic acid. Acetic acid is weak compared to what? Formic acid. यानी इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन एसिटिक एसिड, एंड देन फाइनली प्रोपियोनिक एसिड. Isn't it? Example number 2. Second example. Acetic acid. This is the iodoacetic acid. Bromoacetic acid. क्लोरोएसिटिक एसिड एंड फ्लोरोएसिटिक एसिड, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? आई विल राइट pKa वैल्यू फर्स्ट. pKa वैल्यू ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज 2.66. इन केस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इट इज 2.86. इन केस ऑफ ब्रोमो pKa is equal to 2.92. In case of iodo, pKa is equal to 3.17, and acetic acid pKa is equal to 4.76. अभी हमने देखा रिलेशन pKa and acidic strength, it is inversely proportional. On the basis of what? pKa, the relation is acidic strength is inversely proportional to pKa, यानी pKa बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली क्या होगा? कम होगा. सबसे कम pKa किसका है? फ्लोरोएसिटिक एसिड का सबसे कम pKa वैल्यू है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी फ्लोरोएसिटिक एसिड ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है.
then chloroacetic acid. A stronger than what? Bromoacetic acid. Bromoacetic acid is stronger than what? Iodoacetic acid, क्योंकि pKa बढ़ रहा है, यानी सबसे वीक क्या है? एसिटिक एसिड. If you don't know pKa values, don't worry. Back to inductive effect. We know that acidic strength is directly proportional to negative inductive effect and inversely proportional to positive inductive effect. एसिडिक एसिड में कौन सा इफेक्ट है, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये मिथिल ग्रुप है. मिथिल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हियर एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. ये ऑक्सीजन क्या सोचेगा? मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हाइड्रोजन को तकलीफ नहीं दूंगा मैं, बख्श देगा हाइड्रोजन को, यानी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी सबसे वीक है. अभी फ्लोरोएसिटिक एसिड, here from acidic acid one hydrogen is replaced by fluorine, here one hydrogen is replaced by chlorine, here one hydrogen is replaced by bromine, and here it is iodine. आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इन केस ऑफ हैलोजन? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, यानी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल. एक इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है यानी विल एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी फ्लो हो रही है, यानी ये बॉन्ड वीक है, बहुत वीक है, ये जल्दी ब्रेक होगा. ये माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट. Fluorine is the most electronegative element. This is the order of electronegativity. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. यानी fluorine will exert minus I, strong minus I effect. Then chloro, then bromo, then iodo. So order: fluoroacetic acid is stronger than chloroacetic acid, then bromoacetic acid, then iodoacetic acid, and finally acidic acid. In acidic acid there is no minus I effect, here it is a plus I effect. बाकी सब कंपाउंड में माइनस I, जो कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट होगा, यानी फ्लोरोएसिडिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन रेस्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड कंपैरिजन. I have taken butanoic acid. This is alpha chlorobutanoic acid, because here position of electronegative chlorine, this is alpha carbon with respect to carboxylic group. Beta chlorobutanoic acid, this carbon is said to be beta because this is alpha next to alpha, beta, and then gamma. And finally this is alpha, beta, and gamma. So position of electronegative chlorine at gamma. So here I have taken butanoic acid, alpha chlorobutanoic acid, beta chlorobutanoic acid, and gamma chlorobutanoic acid. इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? हमने देखा है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, वो ज्यादा दूर तक ऑपरेट नहीं होता, वो स्ट्रांगली प्रेजेंट इन फर्स्ट टू कार्बन आइटम्स, वीकली इन थर्ड एंड फोर्थ, and after fourth carbon it becomes zero. Remember, as the distance between acidic hydrogen and electronegative atom or group of atom increases, acidic strength decreases, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वीक होता है. Now take first butanoic acid. To this carboxylic group, here N propyl group is attached, यानी there is a plus I. यहां पे माइनस आई इफेक्ट नहीं है, प्लस आई इफेक्ट. here it is a plus I effect, यानी ये सबसे वीक होगा. Suppose this is the first compound, this is second, this is third,
एंड दिस इज अ फोर्थ. सो सबसे वीक कौन सा? फर्स्ट. ये सबसे वीक. नाउ टेक अल्फा क्लोरो. अल्फा क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड. हियर डिस्टेंस बिटवीन एसिडिक हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इज वेरी लेस. ये डिस्टेंस कम है एंड इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा. Then it is a beta chloro butanoic acid. Here it is alpha and beta. Here distance between acidic hydrogen and electronegative chlorine increased. Distance बढ़ा. Gamma chloro butanoic acid. Distance और बढ़ा. Here it is acidic hydrogen and here it is electronegative chlorine. Distance increased. So forget about butanoic acid. Consider only alpha chloro, beta chloro and gamma chloro. इनमें से weak कौन सा होगा? Definitely gamma chloro. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एसिडिक हाइड्रोजन से बहुत दूर है, यानी फोर्थ कंपाउंड. इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? डेफिनेटली बीटा क्लोरो, यानी थर्ड. एंड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो? अल्फा क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड. दिस इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज लेस. यहां पे डिस्टेंस बढ़ा, सो इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई. गामा में और डिस्टेंस बढ़ा, यानी स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई. इन ब्यूटानोइक एसिड देयर इज नो माइनस आई इफेक्ट, देयर इज अ प्लस आई इफेक्ट. एंड सबसे वीक ब्यूटानोइक एसिड, देन गामा क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, देन बीटा क्लोरो एंड अल्फा क्लोरो. अल्फा क्लोरो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटानोइक एसिड इज वेरी वीक. Correct. In this comparison, here comparison between propanoic acid, propanoic acid and propanoic acid. Here carboxylic group is attached to sp hybridized carbon atom. Yani hybridization of this carbon is sp, because to this carbon here 2 sigma and 2 pi. 2 sigma 2 pi yani sp. In a second example, here this carboxylic group is attached to sp2 hybridized any olefinic carbon atom. Hybridization of this carbon is sp2, because to this carbon 3 sigma and 1 pi. Here sigma pi, sigma and hydrogen, again sigma bonded to this carbon. In first, that is the propanoic acid, this carboxylic group is attached to what? sp3 hybridized carbon atom. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पे sp2 है और यहां पे sp है. एंड वी नो दैट परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp3 is equal to total number of s atomic orbitals divided by total number of atomic orbitals in that hybridization into 100. So इसमें एक s atomic orbital, so 1 divided by total number of atomic orbitals 1s and 3 यानी 4 into 100 यानी 25% s character in sp3. sp2 percentage of s character in sp2. sp2 में percentage of s character क्या होगा? इसमें एक s atomic orbital है, 1 divided by 3 into 100. So here it is 33.33%. Percentage of s character in sp 1 divided by 2 into 100, that is 50%. And we know that electronegativity is directly proportional to percentage of s character. And which carbon is more electronegative? In third compound, this carbon is more electronegative. ये जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, because 50% s character. Here 33.33% s character, and यहाँ पे 25%, यानी this carbon is less electronegative. And we know that acidic strength is directly proportional to minus I effect. So यहाँ पे minus I effect ज्यादा होगा. Exactly same here. Here also minus I effect is there because this carbon is sp2 hybridized, electronegative. यहाँ पे minus I, यहाँ पे minus I, but here it will exert plus I effect. Alkyl group is here less s character, percentage of s character only 25%, and we know that alkyl is electrophile, that is electron donor. So ये plus I exert करेगा, ये minus I यहाँ पे भी
माइनस आई, इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा बिकॉज 50% एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ए होगा. देन प्रोपेनोइक एसिड एंड फाइनली प्रोपेनोइक एसिड. pKa value of this propanoic acid is 4.9 pKa. इसका pKa 4.2 और pK of this it is 1.9, यानी it is strong. So what is the order? Suppose this is the first, this is second, this is third. So which one is strong? Third one is strong, then second, and then first. Isn't it? Because as a minus I effect increases, acidic strength also increases. So here it is a strong minus I due to carbon-carbon triple bond. Because this carbon is more electronegative compared to olefinic and paraffinic. Here sp2 hybridized and the percentage of S character is what? 33%. So it is more electronegative compared to this paraffinic carbon atom. And this is weak acid and this one is strong acid. If any doubt, put your doubt in comment box. Definitely I will back to you. Thank you.